ਦੋਸਤੋ मैं ममता शर्मा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਿਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹਿਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी आप सभी को मेरा नमस्कार। ਪੂਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ वाले ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ पर फिर भी हिंदी बोल रहे हो। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पंजाब में रहती हूँ पर जो बेसिकली क्या है मेरी चाइल्डहुड एजुकेशन है वो जम्मू कश्मीर से है। एक्चुअली मेरे फादर जम्मू में जॉब करते थे तो सिंस चाइल्डहुड 7th क्लास तक की स्टडी मेरी वहाँ तक है। तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश और हिंदी का कुछ ऐसा बेस बन गया कि आज मैंने जब यहाँ 8th में शिफ्ट हुई मैंने अपनी स्टडीज में पंजाबी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े पर जो मेरी बोलने की फ्लुएंसी है वो कुछ हिंदी ही बन गई। पंजाबी में लिखती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ पर प्रॉपर से बोलने में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है तो मैंने सोचा कि जिसमें मेरी परफेक्शन है मैं उसी में ही बात करूँ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6th ਜਾਂ 7th ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ठीक है मैम एक्चुअली 7th के बाद मेरे मदर ने एक्चुअली खन्ना पंजाब खन्ना में जॉब के लिए ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब उनको वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मेरे फादर जम्मू में जॉब करते थे तो उन्होंने अपनी जॉब को वहीं कंटिन्यू किया और मदर को यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गई खन्ना में तो मदर यहाँ शिफ्ट कर गए तो उन्होंने साथ में मुझे भी साथ में ले लिया कि खन्ना में चलेंगे। साथ में मेरे बड़े ब्रदर हैं तो वो कुछ समय पापा के पास रहे तो और बाद में 10th ऑनवर्ड्स ब्रदर भी यहाँ पर आ गए क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का मे भी ये प्लान था कि फादर साहब जम्मू में थोड़े से उस वक्त थोड़े हालात ऐसे चल रहे थे तो उन्हें लगता था कि लॉन्ग रन हमारा घर जो है चंडीगढ़ मुल्लांपुर में है तो उन्हें ये लगा कि हम पंजाब में ही शिफ्ट करेंगे। बेसिकली हम पंजाबी हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हम पंजाब में ही आ जाएंगे तो बट फ्यूचर धीरे धीरे करते हम यहाँ पर खन्ना में आ गए। मेरी 10th तक की स्टडी +1 +2 मैंने वहीं किया। इवन मैंने जो अपनी BCom करी है वो भी खन्ना में करी। फर्दर जो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में MA या B.Ed एजुकेशन की वो मैंने लुधियाना सिटी से की तो मेरी बाकी की पूरी स्टडीज पंजाब की है। बट इन बिटवीन जो फादर के प्लान थे वो उस तरह से कर पाए शिफ्ट नहीं हो पाए क्योंकि जब मैं 10th में थी तो उस टाइम वो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। उसके बाद से मदर ने टेक केयर किया ब्रदर की और मेरी और ऐसे करते हुए ब्रदर ने भी कॉमर्स की स्टडीज में आगे ICWA किया मैंने ही कॉमर्स की स्टडीज में फर्दर कंटिन्यू किया तो ऐसे करते करते जो मेरी मैरिज है वो चंडीगढ़ में हुई और 2004 में एंड 2006 में मेरी बेटी 6 मंथ्स की थी। उस वक्त से मैंने पढ़ाना शुरू किया मैं इस प्रोफेशन में आई। हाँ मैंने मैरिज से पहले 1 ईयर जॉब की स्कूल में तो साथ ही मैरिज होगी तो बेटी जब 6 मंथ्स की थी तब से मैंने घर में स्टूडेंट्स को एक तरह से पढ़ाना शुरू किया चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 7 में। पर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए बहुत स्टूडेंट आए बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो ग्रेजुअली इस चीज़ को मैंने एक अकेडमी में शिफ्ट कर दिया। आज मैं बाय गॉड ग्रेस अकेडमी चला रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और इस चीज़ में मेरे पेरेंट्स का मेरे हस्बैंड का यहाँ फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया कि जिस प्रोफेशन से जुड़े हो ये तो बहुत नोबल प्रोफेशन है क्योंकि टीचर स्टूडेंट की लाइफ को बदलने में जो योगदान देता है नो डाउट पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स सबसे पहले हैं एक बच्चे के लिए बट अगर
टीचर्स अपने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के कैरेक्टर बिल्डअप में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस जागरूकता को अगर टीचर बढ़ा सकते हैं तो ये जो देश है हमारा भारत देश, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे भारत के यूथ में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा कुछ है। तो बस इस तरीके से ही मैं अपनी एकेडमी को आगे बढ़ा पाई। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपका बचपन जो है जम्मू कश्मीर में बीता, हाँ तो जी। आप कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर उन दिनों में जो है सेफ नहीं था। वैसे देखा जाए तो अभी भी हालात तो वहाँ पे तितर बितर होते ही रहते हैं, है ना। अगर सोचा जाए, अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो हालात अभी भी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि वो देखो पाकिस्तान के साथ जो टच हुआ बॉर्डर है, हाँ तो जी। उस वजह से जो है मतलब आपको पता है कि जो पड़ोसी देश हैं वो अपनी शरारतों से या अपनी हरकतों से कभी भी जो है कि इन शांतिमयी जो है किसी भी भारत के प्रदेश के साथ जहाँ पे ये टच होते हैं, ये उन जगहों को शांतिमयी नहीं रहने देते हैं। आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका वहाँ पे, आप कह रहे हो कि बचपन में हालात नहीं ठीक थे, आप कुछ बता सकते हो कोई ऐसी घटना या कुछ की कभी आपको लगा हो कि आप बहुत डेंजर में वहां से गुजर रहे हो, या स्कूल जाते आपको डर लगा हो, या आप हर वक्त आपके घरों के दरवाजे बंद रहते हो, पड़ोसियों से कोई मतलब कुछ भी ऐसा है माइंड में? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 6-7 तक की स्टडी में बच्चे के माइंड में इतना कुछ नहीं होता कि भी वो ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्राइक देखी या थोड़ा बहुत कश्मीर जम्मू साथ लगता था, तो ऐसी कुछ ज़्यादा मेमोरीज नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स का ये था, बेसिकली जो शिफ्ट होने का रीज़न था कि मदर आगे जो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, तो उनको था कि जब हमारा मोस्टली परिवार पंजाब में है तो हम पंजाब में ही जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई डर नहीं था जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमारे दिल में प्यार है, अफेक्शन है, तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा हो जाएगा। तो मैंने कभी भी किसी भी देश के हालात के बारे में कि उस तरफ ऐसा बॉर्डर लग रहा है, ऐसे विचार कभी आए नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस मकसद के लिए आए थे, हमारा पर्पस था कि हमारा पूरा परिवार पंजाब में, हम वहीं पर शिफ्ट करेंगे, हम इसीलिए पंजाब में आए थे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने शादी के 6 मंथ्स के बाद जो है बेटी को मतलब बेटी बेटी की को 6 6 मंथ्स की months थी, आपने जो है टीचिंग शुरू कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस दौरान जो है आपको कोई परेशानियां कि मतलब बच्चा घर में है कि मैं कैसे टीच करूं, या मतलब कोई फैमिली सपोर्ट, कोई सास ससुर की सपोर्ट, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको शादी के बाद जो है ससुराल वालों की तरफ से सपोर्ट बहुत कम मिलती है, और लड़कियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ससुराल वाले कई बार यही चाहते हैं कि ये जो है सिर्फ घर के योग्य ही रहे, घर को संभाले, ये सेल्फ स्टैंड ना हो, मतलब इसकी मतलब वो जैसे कहते हैं दबा के रखने वाला सीन। मतलब कुछ ऐसी आपको कोई परेशानी आई, आपको फुल सपोर्ट मिली फैमिली? नहीं नहीं, ऐसी मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई, मुझे पूरी सपोर्ट मिली है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है जो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। जिस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ ही स्टूडेंट्स थे, धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स बढ़ते गए, बैचेस बनते गए। तो उस केस में क्या है कि मेरे मदर भी यहाँ जॉब कर रहे थे, तो वो 9 to 5 की जॉब से 5 o'clock आते थे। तो कभी कभी फादर ये करते थे कि कोई बात नहीं, तूने स्टूडेंट्स पढ़ाने, बच्चों को या बेटी को मैं देख लूंगा। तो ऐसे करके हमने मैनेज करके, कभी मदर उनको छुट्टी जल्दी हो गई वो आ गए, या ऐसा करके हम मैनेज करके उस टाइम, क्योंकि जो मेरी क्लासेस थी वो आफ्टरनून ही रहती थी। आज भी मैं आफ्टरनून क्लासेस 3 PM के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि एकेडमी में स्टूडेंट्स तभी आते हैं जब वो स्कूल से फ्री होके आ जाते हैं। तो उस केस में तब भी पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, और इवन मेरे बच्चे खुद के, बेटी बेटा दोनों सपोर्टिव हैं कि हम जो कर रहे हैं, ये मम्मी आप जो प्रोफेशन में हो, आप इतने स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, तो वो भी इस मिशन में मेरे साथ हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करते कि आप हमें टाइम नहीं देते, आप तो पढ़ाने में रहते हो, ऐसा वो कभी नहीं कहते हैं। मतलब ये कहा जाए कि फुल फैमिली सपोर्ट है, कि कोई भी जो है अभी तक आपको लाइफ में परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। तो इसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहूंगी, जैसे कि आप एक डॉटर की मदर हो, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आज के समय के अकॉर्डिंग मतलब पेरेंट्स जो हैं जिनकी बेटियां होती हैं, उनको अपनी बेटी की परवरिश कैसे करनी चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि जो बेटी है वो ही एक महिला है, वही एक औरत है जो एक समाज को बनाने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक पेरेंट्स ये अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा, वैसे तो सभी यही कोशिश करते हैं कि बेटी हो या बेटा, अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएं, क्योंकि एक संस्कार पर ही परिवार चलता है। तो हम जो बेटी को, जैसे मेरी बेटी है, कोशिश रहती है उसे हर समय ये गाइड करने की कि एक बेटी को एक अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए। बेटियां बड़ी होती हैं, स्कूल कॉलेज में जाती हैं, उनके साथ एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ग्रुप बनता है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सामने वाला उनको किस नजर से देख रहा है, अच्छे और बुरे की उनको पहचान होनी चाहिए।
उन्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी डर के रहें, वो औरत, बेटी, लड़की बहुत मजबूत है, एक समाज की नींव है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उन्हें हमेशा हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी एक्शन लूंगी, इसका जो प्रभाव है वो मेरे परिवार पे पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स मेरा मान है, मैं जो कर रही हूँ उसका पूरा पूरा उन पर अच्छे से अच्छा असर पड़े। कहते हैं एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है कि मेरे पेरेंट्स को कभी कोई मेरे वजह से कभी कोई ऐसा ना कहे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे बचपन से ये रहा है कि मेरे ऊपर कोई इस तरह से उंगली ना उठाए कि मेरे पेरेंट्स को कोई ये कहे जी आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मेरे को हमेशा ये कोशिश रही है, वही चीज मैं अपनी बेटी को बताना चाहती हूँ। और जितनी भी बेटियां बच्चे हमारे परिवार में सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, आप अपने अंदर इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान भरें, इतनी स्किल्स भरें कि जब आप किसी से बात करें तो सामने वाले को लगे कि इसके पास इतनी नॉलेज है। क्योंकि सच ये है कि आज हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम अच्छी अच्छी ड्रेसेस, हम मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर हम सोचते हैं कि हम सामने वाले पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि समा ऐसा आ रहा है। बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को एक ऐसा इंप्रेशन डालती हैं कि अगर हम मॉडर्न ड्रेसेस डालते हैं तो शायद हम ज्यादा सुंदर लगते हैं। वेस्टर्न इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, वेस्टर्न इम्पैक्ट ज्यादा हो गया है। पर सच बताऊं, जो वेस्टर्न इम्पैक्ट या जो फॉरेन कंट्रीज में है, लेडीज हैं या जो लोग हैं, वो इंडिया के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। मेरा अब्रॉड कई बार जाना हुआ है, तो जब हम वहां पर किसी सेमिनार या फंक्शन को अटेंड करते हैं, कुछ प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि वहां पर लोग स्पेशल आ के फोटो खिंचवाते हैं कि मैम यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी, इंडियन ड्रेस, इंडियन अटायर। वो हमारे साथ पिक्स खिंचवाते हैं। सोचिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स साड़ी पहनने लगे, वो तो एक वक्त आता है, एक समय आता है, खुद साड़ी अच्छी लगती है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, यंग हो रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, आप अपना जो भी ड्रेसिंग सेंस आपका हो वो इतना सूदिंग हो, इतना अच्छा हो, सामने वाले को बहुत एक नॉबल जेस्चर मिले, वो आपको किसी गलत नजर से देख ना पाए। इस चीज का हम ध्यान रखें। साथ ही साथ हम अपने अंदर, अपने ब्रेन में इतनी अच्छी नॉलेज, वो नॉलेज तो आपकी स्टडीज की भी हो सकती है, वो नॉलेज हेल्थ की हो सकती है, वो नॉलेज स्पिरिचुअल मैटर्स को लेकर हो सकती है, वो नॉलेज कैसी भी हो सकती है। उतना बोलें जितना रिक्वायर्ड है, और बात में आपकी इतना दम हो कि सामने वाला ये सोचे कि इनके पास तो बहुत जबरदस्त नॉलेज है। तो मैं हर एक बेटी को ये कहना चाहूंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस भारत देश का नाम रोशन करें, क्योंकि बेटियां वो हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, एक समाज को बना सकती हैं, एक देश को बना सकती हैं, पूरे विश्व को तैयार कर सकती हैं। आपकी इसी बात से एक बात मेरे मतलब मन में आई, मतलब ये आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही मेरे मन में आया कि जैसे आप कह रहे हो कि आप बहुत बार विदेशों में गए हो, और मतलब बहुत लोग जो हैं आपको मिलते हैं, आपको देखकर, आपकी प्रतिभा को देखकर, आपके पहरावे को देखकर आपकी ओर आकर्षित होते हैं और बहुत प्रेज करते हैं। ये बेसिकली हम लोग भी कई बार, मतलब हमारे भी सर्कल में, जैसे सोशल मीडिया से या कह लो भी हमारे बहुत नोट हैं जिनसे, मतलब क्या होता है कि जब कोई यहाँ से कनाडा जाता है, मैं ये बेसिकली बाहर रहने वाले पंजाबियों की बात करने लगी हूँ, बेसिकली जब कोई कनाडा जाता है तो मतलब वो रिलेटिव्स जो है यहाँ से, जो है इंडिया से, पंजाब से, मतलब इतने अच्छे अच्छे पंजाबी पहरावे और टिक्का और जो सगी, फुल एंड एक्स्ट्रा, मतलब जो कल्चर हमारे बच्चों को यहाँ नहीं पता, हमारे पंजाब के बच्चों को, जब हम कनाडा जाते हैं, वहाँ के पंजाबियों को जब मिलते हैं ना, वहाँ के बच्चों को मिलते हैं, हमारे बच्चे तो कई बार कहते हैं कि नहीं मैंने तो जीन्स पैंट पहननी है, मैंने सूट नहीं पहनना। हाँ जी। बट हम जब वहाँ के बच्चों को मिलते हैं तो वहाँ के बच्चों ने इतने सही ढंग से इतने अच्छे अच्छे पंजाबी सूट पहने होते हैं कि मतलब जो कहते हैं ना कि कई बार यहाँ पे भी पंजाबी भी ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड पहले वहां पहुंचा होता है कि वहाँ के लोग अपने कल्चर को लेके इतने ज्यादा मतलब भावुक हो रखे हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि अपने कल्चर की दूसरे देश में जो पहचान बनानी है, वो जैसे आप कह रहे हो कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करो, तो वो लोग बाहर रह के भी जो है मतलब वहाँ के बच्चों को इतनी अच्छी ढंग से पूजा पाठ और सब कुछ आ रहा होता है। जबकि अगर आज की बात सोचिए तो हमारे इंडिया में वेस्टर्न का इतना ज्यादा प्रभाव हो चुका है कि हमारे बच्चे जो हैं मतलब वो और ही तरफ जाते जा रहे हैं। जबकि अगर हम उन बच्चों की ओर देखें तो उन बच्चों को जो है सूटों का और पूरे अपने पंजाब का या भारत का पूरा कह लो कि पूरा ज्ञान और पूरा इतिहास, मतलब उन बच्चों में इतनी अवेयरनेस होती है। जबकि हमारे बच्चे जो है आजकल मतलब विपरीत होते जा रहे हैं कि मतलब नहीं तो लोग कहते हैं कि मतलब बाहर से जब कोई लड़का आता है शादी करने के लिए, वो कहता है कि मैंने पंजाब की लड़की लेनी, मैंने एनआरआई लड़की नहीं लेनी है, इंडिया की भारत की रहने वाली लेनी है। बट आजकल क्या हो रहा है, अगर रियलिटी देखी जाए तो मुझे लग रहा है कि इंडिया पे या पंजाब पे वेस्टर्न का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है और बाहर के बच्चे थोड़े से ज्यादा सूझवान हो रहे हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। इसका रीजन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है
कि जिसके पास किसी चीज का अभाव होता है ना, उसको उस चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अभी जो लोग बाहर रह रहे हैं, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं वो भारत देश को, इंडिया को बहुत याद करते होंगे, बहुत मिस करते होंगे, उनकी बचपन की यादें रही होंगी, उन्हें वहाँ की वो कल्चर, वो ड्रेसेस, वो त्योहार का एक दूसरे के साथ मनाना, वो सब उनको बहुत याद आता होगा, तो वो भारत देश को याद करते होंगे। और हम जो भारत में रह रहे हैं, हम हर दिन त्योहार यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो शायद हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनके पास नहीं है, वो समझ रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, तो हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास वो कल्चर उतना नहीं है, वो आ जाए हमारे पास। जबकि सच ये, हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है, हमारे पास नॉलेज का, ड्रेसेस का, कल्चर का, रीति रिवाजों का, त्योहारों का। सोचिए, आमतौर पे कहा जाता है कि बाहर अब्रॉड में, फॉरेन में बिजी लाइफस्टाइल है, एक परिवार दूसरे परिवार को जल्दी मिल नहीं पाता और मिलने से पहले एक कॉल करना पड़ता है कि आप क्या इस समय भी हैं, हम आ जाएं घर में। यहाँ हमारे भारत देश में जब परिवार मिलते हैं एक दूसरे को, चाय पानी नाश्ता, कितना कुछ हम एक दूसरे का वेलकम करते हैं। इससे पता चलता है भारत देश में एक दूसरे के प्रति कितना परिवार, कितना प्यार है। और ये किसी किसी स्टेट में तो बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना इस प्यार को और बढ़ाया जाए। यहाँ ये चीज में हम ना पड़ जाएं कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है। हमारे आसपास जो भी हमें परिवार मिले, जो हमारा नेबरहुड है, हम उतने में ही अपने प्यार को बांट पाए, उतने में ही खुशी बांट पाए। तो शायद जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हमारा शायद उसका मकसद हल हो जाता है कि हम अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करें, अच्छी वाइब्रेशन दें, लोगों में अच्छे से अच्छी खुशी बांटें। अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, किसी का दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, वो मदद जरूरी नहीं वो मदद पैसे से होती है। कई लोग तो पैसे से देखिए बहुत चैरिटी करते हैं, पैसे से भी मदद होती है, बट मानिए, सच मानिए, विचारों से भी मदद होती है। अगर हमारा भाव सामने वाले तक ये पहुंचेगा कि इसका काम बने, इसको जीवन में सक्सेस मिले, और तो इस तरीके से हम भी अपनी और बहुत सारे विचार बांट करके हम अपने जीवन के मकसद को हल कर सकते हैं। क्योंकि पूजा, कई बार क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे से चैरिटी होती है, ठीक है, पैसे से चैरिटी होती है। कई बार इंसान इतना निराश होता है कि उसे, मतलब ये कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए होती, कोई पैसे की चैरिटी नहीं होती, उसे एक रियल पर्सन, एक जो सच्चा साथी होता है, उसका मतलब कंधा चाहिए होता है कि हाँ भी ये इंसान मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे, मेरी परेशानियों को सुने, मुझे उसका हल दे। मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि तुम सुझाव दे दो, तुम उस इंसान की परेशानी हल करने के लिए अगर तुम उसके कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े हो ना, तो जो इंसान अकेला पड़ रहा है कि उसको वो अकेलापन जो है उसका दूर हो जाता है। क्योंकि अगर कोई परेशानी में है और तुम उसको परेशानी में दो शब्द प्यार के, या तुम उसको इमोशनली मतलब उसके साथ जुड़ रहे हो, उसकी तुम भावनाओं को समझ रहे हो, तो वो चीज जो है किसी दुखी इंसान के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। हालांकि खैर, अगर बात पहरावे की हो रही थी, तो जो अपने भारत के बच्चे हैं, चलो वो कहीं ना कहीं पहरावा भटक रहे हैं, बट अगर बात इमोशंस की जाए तो हमारे भारत में पूजा अभी भी इमोशंस जो है वैसे पनप रहे हैं। जबकि अगर विदेशों का कंपैरिजन किया जाए तो विदेशों में जो इमोशंस हैं उनकी बहुत कमी है। विदेशों में से अगर, जैसे आपने अभी बोला कि किसी के घर जाना होता है जब, तो हम कॉल करके जाते हैं कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर फैमिली ने भी एक दूसरे से मिलना है, क्योंकि वहाँ पे सबके वर्किंग टाइम्स अलग अलग हैं, तो मतलब कोई सुबह आ रहा है, कोई शाम को हो रहा है, एक दूसरे की शक्लें देखे भी 4-4 दिन हो जाते हैं। तो वहां पे जो मेरे ख्याल से फैमिलीज का जो सीन है कि वहां पे हर कोई इंसान जो है, मुझे लगता है इमोशनली जो है लोनलीनेस वहां पे ज्यादा है। वहां पे एक दूसरे का जो साथ है, एक दूसरे के साथ विचार प्रकट करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। वहां पे लोग अगर पार्क में जा रहे हैं, गलियारों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता नहीं वहां पे कोई हाय हेलो वाले भी कोई सीन होंगे तो वो कहते हैं ना, वो दूर दूर से, मतलब कि हाँ भी कोई किसी के घर आ ना जाए, कि लोगों को वहां पे इतना प्राइवेसी वाला सीन हो चुका है। मतलब ये हम एक सिर्फ बात करें कि हमारे भारत के कल्चर की, या मतलब विदेशों के कल्चर या पहरावे की, इसके साथ साथ पूजा, जैसे आप टीचर हो, हाँ जी, तो मैं ये आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से टीचर और जो विद्यार्थी है उनका और पेरेंट्स का आपस में तालमेल जो है वो कैसे होना चाहिए। मतलब टीचर तो जो अपना रोल निभा देती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से टीचर जो है वो फर्स्ट मदर है, ठीक है। अगर जेंट्स टीचर है तो वो फर्स्ट फादर है, अगर मदर लेडीज टीचर है तो वो फर्स्ट मदर है। मतलब इस तरह में आप क्या, मतलब कैसे इस चीज को क्लियर करना चाहोगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पेरेंट्स सबसे पहले, पेरेंट्स से इमीडिएट बाद जब बच्चा छोटा स्कूल जाना शुरू होता है, तो टीचर ही उस बच्चे के लिए सब कुछ हो जाता है। वो उसे सिखाता है, बहुत सारी चीजें बताता है।
तो टीचर चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, मेरा ये मानना है टीचर का स्टूडेंट की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जो जो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है हमारे एजुकेशन में सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब कुछ करना है, बट मेरा ये मानना है टीचर स्टूडेंट्स को बाय द वे, साइड बाय साइड मोटिवेट करके उसके लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन बन सकता है, उसे ये गाइड कर सकता है कि वो जो स्टूडेंट उनका है, वो जो सामने जितने भी बच्चे हैं, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस बहुत कुछ करने के साथ साथ मेरा ये मानना है किसी भी बच्चे की नींव उसका एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी अच्छी सोच होनी चाहिए, उसका समाज के प्रति कुछ अच्छा करने का उसके अंदर विचार पैदा होना चाहिए। जैसे मैं देखिए अकाउंट्स कराती हूँ या इकोनॉमिक्स कराती हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, बच्चे की लाइफ में अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये काम आएंगे, उसको जॉब लगेगी, वो सीए बन सकता है, वो आईसीडब्ल्यू बन सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बट सोचिए अगर मैंने ये योगदान उसको एक अच्छा इंसान बनने में भी दिया, चाहे मैंने पूरे वीक में सैटरडे या किसी दिन 10 मिनट लगाए और उस बच्चे को पर्सनली डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई जिससे कि उसको फर्दर कुछ आगे बढ़ने में गाइडेंस मिल सके, वो टीचर्स की, बड़ों की, रिलेटिव्स में हर तरफ रिस्पेक्ट पाए और औरों की रिस्पेक्ट करे, कुछ एक उसे रास्ता, जरिया मिले कि वो जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंचे, औरों की मदद करे, तो देश का सोचिए कितना बड़ा सुधार हो सकता है। एक एक टीचर सामने वाले बच्चे को हमेशा हमेशा ये एक उम्मीद जगाए कि वो बच्चे इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, बच्चे अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है। जब टीचर उनको देते हैं तो सच बताऊं पेरेंट्स से ज्यादा इम्पैक्ट टीचर का बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चे जब छोटे छोटे घर पहुंचते हैं तो वो वही अपनी मम्मा या पापा को बोलते हैं कि टीचर ने कहा है, मैम ने कहा है, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। तो टीचर का इतना बड़ा रोल है, वो जैसा चाहे उस बर्तन को, उस कच्ची मिट्टी को वैसा आकार दे सकते हैं। तो अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है या किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो उन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को जरूर फॉलो करें, क्योंकि टीचर उनके लिए वो गुरु है। टीचर तो एक ऐसा माइलस्टोन है which shows paths to other, जो औरों को रास्ता दिखाता है, वो मील का पत्थर जो वहीं रहता है और न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखा जाता है, कितने लोग, कितने बच्चे उस टीचर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, और टीचर शायद वहीं का वहीं रहता है। पर टीचर को सच मानो इसी में ही खुशी मिलती है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं। मुझे आपकी इसी बात से एक बात और याद आई। मैं साल 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ से, क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो स्कूल के बाहर से निकल रही थी, तो स्कूल के बाहर से निकलते जैसे निकलते तो वो अंदर से इमोशंस जाग जाते हैं कि ये मेरा स्कूल था। हाँ जी। तो चलो जी मैं चली गई स्कूल, तो स्कूल गई, मुझे एक वहाँ पे हमारी फेवरेट टीचर होती है, ड्राइंग टीचर है, वो स्टिल वहाँ पे वर्किंग है। मतलब हालांकि मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं लिया कभी भी, मेरा सब्जेक्ट जो है संस्कृत होता था। तो वो मैम के साथ ना, जैसे कहते हैं ना आप, मतलब कुछ टीचर से फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है कि बड़ा प्यार सा हो जाता है, तो उस टीचर के साथ ऐसे था। जब मैं स्कूल गई तो मुझे मेरी वो ड्राइंग की टीचर मिल गई। मतलब मैं इतनी खुश, मतलब मैंने उनके साथ नंबर चेंज किए। फिर वहीं पे एक हमारे टाइम के एक पंजाबी के टीचर होते थे, वो मिले। उनके मतलब आजकल ये तो चलो जो नंबर वाला सीन हो गया, ठीक है, आजकल सोशल मीडिया ने भी इन रिश्तों को इतना नजदीक कर दिया है कि मैंने उन तीनों टीचर से मुझे मिली ना, मैंने सबको फेसबुक पे ऐड कर लिया। मतलब अब कहीं भी कह लो कि उनसे दूरी बनने का कोई माध्यम रह नहीं गया कि वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर चीज पे मेरे साथ जो ऐड है, और उनको मेरी लाइफ के अपडेट्स मिलते हैं, मुझे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब इंसान को किसी से प्यार हो तो मतलब कोई ना कोई माध्यम निकल जाता है। और मुझे चलो स्कूल से बाहर जाते हुए स्कूल दिखा, मन में इमोशंस जागे, तो मैंने कहा चलो यार अंदर जाके देखते हैं, कोई शायद पुराना अपना अध्यापक मिल ही जाए। तो 2-3 टीचर्स मिल गए। इसी से मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम लोग पूजा जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उन वक्तों में अगर टीचर से बात करनी होती थी, या तो हमें स्कूल जाना पड़ता था, या हमें स्कूल के क्लरिकल डिपार्टमेंट में या कहीं भी कॉल्स करनी पड़ती थी। मतलब डायरेक्ट जो है उस वक्त टीचर्स के नंबर पेरेंट्स को नहीं दिए जाते थे, है ना? आपको ये बात याद हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के वक्त में जो हो चुके हैं, आज के वक्त में सोशल मीडिया काफी एडवांस होने का हमें एक तो बेनिफिट ये हो गया कि आजकल टीचर्स और पेरेंट्स के जो है ग्रुप्स बन चुके हैं, और अगर कोई भी परेशानी पेरेंट्स को टीचर के साथ हो तो पेरेंट्स टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर टीचर्स को कोई बच्चों के रिगार्डिंग कोई परेशानी होती है तो टीचर्स भी जो है आजकल मतलब पेरेंट्स के साथ मतलब खुल के बात कर पा रहे हैं। ये जो पेरेंट्स और टीचर का जो रास्ता कायम हो गया ना, ये बहुत अच्छी चीज है। पहले ये थोड़ा सा इस चीज में डिफरेंस रहता था कि कई बार पेरेंट्स भी जो है स्कूल जाने से हिचकिचाते थे कि यार जाएंगे स्कूल, इतना दूर लग रहा है। और कई बार आगे टीचर अगर क्लास ले रही होती थी
तो मतलब प्रिंसिपल से परमिशन लो बात करने के लिए, मतलब बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती थी कि उन दिनों में प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते थे उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती थी कि मतलब पेरेंट्स डायरेक्टली जो है टीचर से नहीं मिल पाते, क्योंकि मैं भी किसी पूजा टीचर रह चुकी हूँ। तो मैंने भी जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अगर किसी पेरेंट ने मुझे मिलना होता था ना, तो वो पहले नीचे प्रिंसिपल मैम के रूम में जाते थे कि हाँ जी हमें उस टीचर से मिलना है, और प्रिंसिपल मैम उस पेरेंट को बिठा के रखते थे, और जब मेरी क्लास खत्म होती थी तब मैं वहां जाती थी। पर आज के वक्त में है जो ये चीज खत्म हो चुकी है। इस चीज का चलो पेरेंट टीचर को तो बेनिफिट जो हो गया, पर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हमारे बच्चों पे जो है बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब अगर आप देखो कि आजकल एक बेनिफिट, चलो इसको और भी एक बेनिफिट में काउंट कर सकते हैं कि जैसे ड्यू टू कोरोना स्कूल्स बंद हो गए, 2 साल से जो है बच्चे हमारे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज चल रही है। हमने बच्चों को बढ़िया गैजेट्स ले दिए, बच्चे मतलब है जो है तरह तरह के एडवांस मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स और पता नहीं क्या क्या जो है हमने घर में उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। 24 घंटे घर में वाईफाई चल रहे हैं, और हम लोग क्योंकि वर्किंग है तो हम लोग हर वक्त नजर भी नहीं रख पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो है या जो ये सोशल मीडिया है जो बच्चों को हमने मतलब आजादी दे दी है, इसका क्या फ्यूचर में क्या इसका होगा, या हमारे बच्चों में क्या इसका चल रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे जो 2020 में जो कुछ हुआ, एक वायरस आया जिससे सबकी लाइफ बदल गई, तो इस सब चीजों ने सबकी लाइफ के साथ साथ स्टूडेंट्स की लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डाल दिया। एकदम से ऑनलाइन स्टडीज हो गई, करते करते बच्चे आज इस बात को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो बेसिक है, बेस है, नो डाउट उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बच्चों का जो स्टडीज के लिए इंटरेस्ट था, स्कूल जाया करते थे, आज वो स्कूल को बहुत मिस करते हैं। कुछ स्कूल तो चलो खुल चुके हैं, धीरे धीरे और भी सब खुल रहे हैं, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सब स्कूल खुल रहे हैं। बट बीते 2 सालों में जो बच्चों की स्टडी पर प्रभाव पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पहली बार प्री नर्सरी नर्सरी में स्कूल जाना था, उन्हें बैठा दिया गया ऑनलाइन के आगे। क्या कर सकते हैं, ये कैसी मजबूरी का समय आया। बट ये कहीं ना कहीं जो हमारे और बच्चे आगे 6th 7th आगे 10th+1 कॉलेज की स्टडीज, सब पर एक इम्पैक्ट पड़ गया। कहीं ना कहीं बच्चे एजुकेशन या पढ़ाई को लाइट लेने लग पड़े। कुछ तो देखिए, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो चाहे ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास है पूरा एक्टिव होके नहा धो के, इवन कुछ स्टूडेंट तो मैंने ऐसे भी सुने देखे हैं जो बिल्कुल यूनिफॉर्म में रेडी होके बैठते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत कैजुअल मूड में बैठते हैं, बेड पे ही आराम से लेट गए और क्लास को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके कुछ करने लग गए। टीचर ने कौन सा कुछ पूछना है या नहीं भी जवाब दिया, उधर से मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे का नाम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे लाइट हो गए। पर वो क्या करें, एक ये नेचुरल सा प्रोसेस होता चला गया, करते 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 2 साल में एक आदत टाइप सी बन गई। पर फिर भी जो चीज स्कूल के माहौल में जाकर सीखी जा सकती है, इतना तो सच है वो ऑनलाइन में कर पाना बहुत मुश्किल है। चलो समय बीत गया, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आने वाला जो समय, आने वाले जितने भी साल आ रहे हैं वो सभी के लिए बहुत अच्छे हों, स्कूल हमेशा खुले रहें। क्योंकि जो बच्चा एक वातावरण में सीखता है, उस एनवायरनमेंट में टीचर के सामने जाकर सीखता है, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन में मुश्किल आती है। खास करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करवाने बहुत जरूरी है। टीचर ने दिया क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, कर लिया यूट्यूब से देख के, मतलब कहीं से गूगल से या कहीं से सर्च करके उसका आंसर लिख दिया। बट मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि उस टाइम आपने क्वेश्चन को करके कैसे भी टीचर को सबमिट तो कर दिया, बट कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन मुझे खुद सॉल्व करना है। आपको अपने एग्जाम देने, आपको टीचर को होमवर्क सबमिट करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी काम करना है, इतना अंदर मन में जरूर होना चाहिए कि ये सारा सब्जेक्ट, ये पूरा टॉपिक मुझे आना चाहिए, मेरे को किसी से पूछना नहीं है। क्योंकि जब ऑफलाइन एग्जाम होंगे तब कौन हेल्प करेगा, तब हमें ही तो सब कुछ सॉल्व करना है ना। तो बीइंग स्टूडेंट, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ हमारे पास है, हम सब धीरे धीरे एज ए स्टूडेंट क्या, इवन अब तो बड़े भी उस पर इतने एक्टिव हो गए हैं कि हमारा कितना समय, कितने घंटे कुछ ऐसी ही वीडियोस देखने में निकल जाता है, चले जा रहा है, हमें पता ही नहीं कि हमारा कीमती समय निकलता चला जा रहा है। और इसमें क्या, ये नेचुरल हो रहा है, एक इंटेंशनली नहीं हो रहा है। तो मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, आपको यूट्यूब पर या किसी भी चैनल से कुछ सीखना है, अच्छा सीखिए। उस पर ये भी बताया जाता है, फॉर एग्जांपल आप में से किसी स्टूडेंट का मन है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप उसको सर्च करें कि आप एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, कैसे कैसे आपको किस किस सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स को, जनरल नॉलेज को कैसे अप टू डेट रखना है, पूरी गाइडेंस मिलेगी।
आप सीए करना चाहते हैं, उस चीज के लिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आप डिफरेंट मोटिवेटर्स हैं, डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, और बहुत कुछ सिखाने वाले अच्छे अच्छे गाइड हैं जो हमें अच्छा बता रहे हैं। अगर हम कुछ सीखेंगे तो हमें अच्छी नॉलेज हमारे ब्रेन में भरती चली जाएगी। क्योंकि मैं एक कंसेप्ट पे हमेशा से बिलीव करती आई हूँ, एक टर्म है, एक एब्रीवेशन है, GIGO, दिस इज गीगो। गीगो मतलब कि हमारे ब्रेन में ये जो थ्योरी है ये काम करती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने अंदर गार्बेज भरते चले जाएंगे, यहाँ वहां से वीडियोस और चीजें देखते चले जाएंगे, हमारा ब्रेन, मान लीजिए ब्रेन बॉक्स की तरह है, बॉक्स है, अलमीरा है, हम भरते जा रहे हैं। हम अपनी घर की अलमीरा को देखें, कैसे कई बार कबर्ड भरा हुआ होता है, पर जब हम उसमें अच्छा रखना होता है तो हमें पहले उस कबर्ड को खाली करना चाहिए। उस कबर्ड में जो जितना वेस्ट सामान है, एक्स्ट्रा सामान है, हमने इसको सिस्टमैटिकली नहीं रखा है, सब बाहर निकालिए। सिस्टम से वही चीजें रखें जो आपको चाहिए। सिमिलरली ब्रेन में वही चीजें रखें जो अच्छी हैं, जो आपको आगे आने में काम देगी। इसीलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट को हम रिप्लेस करके बना सकते हैं गुड इन गुड आउट। जितनी अच्छी नॉलेज जाएगी, चाहे वो नॉलेज आप बुक्स पढ़ें, देखिए कोई वक्त हुआ करता था जो बुक रीडर हैं, जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है, स्टडीज के अलावा कुछ स्टूडेंट्स, कुछ 20 या 30 प्लस के जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब वर्कर्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा समय में बुक पढ़ने का शौक होता है। हम लोगों के मुझे ये होता था, हम हमें लोग भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। अपनी एजुकेशन आपको बीच में मैंने कट कर दिया, सॉरी। आजकल जो है स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स ने अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें टीचर ने 4-5 क्वेश्चन कट करवा दिए, सिलेबस कट करवा देना। भाई सिलेबस क्यों कट करवा रहा है, जबकि हमारे वक्त में होता था कि अगर 10 क्वेश्चन है ना तो हमारे टीचर्स ने एक्स्ट्रा बुक ले लेके पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवाने, चाहे मैथ्स के सम्स हो, बुक्स पे बुक्स खत्म हो जाती थी। मतलब फिर भी हमें लगता था कि मतलब पता नहीं पेपर कौन से किनारे से कहां से डाल दिया जाएगा कि हम कहीं ये ना हो कि हमारी प्रैक्टिस कम हो और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर ना मिले। ऐसे ही मतलब चाहे लगा लो मैथ्स लगा लो, साइंस लगा लो, किसी भी चीज, मतलब हम लोगों को पूजा कितना वास्ट में मतलब जो पढ़ाया जाता है। पर आज के वक्त में जब भी बच्चों को बदलाव आया, जब भी मैं देखती हूँ टीचर्स, जब देखो बच्चे कहते हैं मम्मा ये सिलेबस कटवा दिया, वो सिलेबस कटवा, मतलब मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है कि यार तुम सिलेबस क्यों कटवा रहे हो? तुम बच्चों की जीके को बढ़ाना चाहते हो या तुम बच्चों को मतलब कंप्रेस कर रहे हो? मतलब तुम बच्चों को वो नहीं फैलने नहीं दे रहे हो, तुम बच्चों को कंट्रोल करते जा रहे हो कि बस इतना सा पढ़ो, इतने में से पेपर आ जाएगा, और इतना तुम डिक्टेट कर दो, फिर इससे टीचर की भी वाहवाही हो जाएगी और बच्चे भी जो है पास हो जाएंगे। बट मतलब कहीं ना कहीं कह लो हमारे वक्त के टीचर्स में और जो अब का चल रहा है ना सिस्टम, थोड़ा सा गड़बड़ा चुका है। शायद मुझे नहीं पता भी इसमें कुछ ना कुछ तो ये जो बीते समय से हुआ, टीचर्स कहीं ना कहीं इसलिए ऐसा प्रोफेशनल ज्यादा बन चुके हैं। नहीं, मैं उसका कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं टीचर्स ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन ना इतने डीप स्टडी करवा पानी कई बार टफ हो जाती है, तो स्टूडेंट भी वहाँ ऑनलाइन प्रेजेंट है नहीं है, कई बार वो बच्चा सुन रहा है, तो ऐसे करके उन्होंने उतना सिलेबस रखा। ड्यू टू द ये जो समय 2 साल निकले हैं, उस वजह से ऐसा हुआ। यही बच्चे अगर स्कूल में होते तो सभी बच्चे पूरा सिलेबस कर रहे होते। हाँ, हमारी पर पूजा थोड़ा सा मैं इसमें जो मैंने आपकी बात काटी है ना, ये ऑनलाइन वाली नहीं है, ये मैंने वैसे भी मतलब हाँ, वैसे भी हो रहा है। कुछ स्कूल जो है ना वो सिलेबस कटवा पे चलते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी क्लास से स्लेबस कटवाते जाओ, मतलब जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे को अपनी बुक के अलावा अगर टीचर ने 4 क्वेश्चन दिए तो स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसी चैप्टर को किसी और बुक से भी करना चाहिए। मैं ये चीज कहना चाहती हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी चीज को लेकर के देखिए, हम टीचर हैं, हमारा फर्ज बनता है, जो हमारे सामने स्टूडेंट है, अगर हम जो यहाँ इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप बड़े हैं, और नहीं तो कोई ऐसे मोटिवेटर, ऐसे जो काउंसलिंग करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे यूट्यूब पर होते हैं, या कुछ इस तरह से। अगर इस टाइम कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो हम उसे कहना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया से जुड़िए, इन प्रोग्राम्स को जो भी आप सुनते हैं अच्छा सुनिए, अपने ब्रेन में अच्छा भरिए, ताकि आपकी नॉलेज अच्छी से अच्छी हो, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिस भी क्लास में है उस सब्जेक्ट्स को थॉरो पढ़िए। आप मैथ्स करते हैं, मैथ की पूरी प्रैक्टिस करिए। अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स के क्वेश्चन 1 ऑथर क्या 2 ऑथर और सॉल्व करिए। आपके पास बहुत समय है, पर होता क्या है ना, वही बात आ रही है कि समय निकल गया, किसी गेम को खेलते खेलते, कोई एक्स्ट्रा वीडियोस देखते देखते समय निकल गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा वीडियोस है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एनर्जी को ड्रेन कर रही है। हमारे बच्चों की एनर्जी निकल कहाँ रही है, उन बच्चों को पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उन सभी को जो ये वीडियोस तैयार करते हैं, वो मे बी किसी भी चैनल पे हो, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को नहीं कहना चाहती, प्लीज ऐसी वीडियो मत बनाइए, चाहे वो किसी जोक में हो, किसी का फन बनाने में हो, क्योंकि हमारे जो बच्चे जो बहुत क्रिएटिव हैं,
जो बहुत प्रीशियस हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका समय निकला जा रहा है, क्योंकि उन नाजुक बच्चों को, उन मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि हम ये देख देख के अपना समय खराब कर रहे हैं। वही बच्चा अगर कुछ अच्छा करे, अपनी स्टडीज करे, स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, आउटडोर एक्टिविटी, माना पिछले 2 साल में उतनी स्पोर्ट्स गेम्स नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हेल्थ, योगा, बहुत कुछ नया सीखने को हमारे पास हमारे डिफरेंट मोबाइल पर है। मोबाइल को इस्तेमाल करिए, अच्छे में इस्तेमाल करिए। देखिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बनाया था कि 5 से 10% उसके यूजेज जो मेन है कि आपके घर परिवार के सभी सदस्य ठीक जगह पर समय पर पहुंच गए। हमने उसको यूज करते 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 इतना ज्यादा मिसयूज कर लिया कि अब परिवार में बड़ा है, छोटा है, घर के सारे मेंबर कमरों में होते हैं पर सबके हाथ में मोबाइल होता है। आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी भी शॉप पर 4 लोग बैठे हैं, सब मोबाइल देख रहे हैं। कॉलेज में जा रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब मोबाइल देख रहे हैं। हाँ, तो हम अपनों से बात कब करेंगे? क्यों वेस्टर्न हमारा कल्चर हम पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि हमारे पास हैं, पर हम उनसे बात करने में समय ही नहीं लगा रहे। तो कहीं ना कहीं दिल से दूरियां बढ़ने लगेंगी। तो हम उन दूरियों को कट करें, परिवार के सदस्यों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे नियर डियर रिलेटिव्स हैं, उनको हम, ठीक है, फोन पे हालचाल, मिलना, बात करना जरूरी है। देखिए, ये सब चीजें इसीलिए तो मोबाइल बना था, बट कहीं ना कहीं अपने समय को यूं ही लगाते चले जाना। और खास करके मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर अभी आने वाला है। वो जब बनेंगे तभी ये देश बनेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने नॉलेज को, क्योंकि जो एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी ब्रेन को लेकर, कहते हैं जो ब्रेन है ना, इज लाइक अ फर्टाइल लैंड, इफ यू डू नॉट ग्रो गुड सीड्स, bushes will come out। कहने का मतलब, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, अगर हम इसमें अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो झाड़ियां अपने आप बाहर निकल आएंगी। तब उन झाड़ियों, आप सोच सकते हैं, झाड़ियां मतलब वो वेस्ट थॉट्स, किसी को लेकर नाराजगी, गुस्सा, एंगर, ये सब चीजें क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है वो बेसिकली, या कोई भी ऐसा गैजेट है, वो उसमें इमोशंस तो नहीं है। अगर हम जो इमोशनल चीज नहीं है उसके साथ अपना समय बिताते जा रहे हैं, तो सोचिए हम कैसे बनते जाएंगे। और यही चीज, फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मान लीजिए कोई सत्संग या कोई अच्छे गुरु का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनकी अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम जब उनको सुनते हैं, वो वाइब्रेशन हम पर असर डालती है, हमें अच्छा लगता है। बट वही जब हम मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं और देखे चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इमोशंस में वीक हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन में अच्छे बीज डालें, ताकि अच्छा बाहर आए। चाहे वो आप किसी बड़े के साथ, किसी अच्छे गाइड, किसी गुरु, किसी टीचर को अपना रोल मॉडल बनाएं, और अपने ऐसे अच्छे 5 फ्रेंड्स बनाएं जो आपकी नॉलेज से और ऊपर बेहतर हैं। वो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव में कोई भी हो सकते हैं, जो आपको हमेशा अच्छा गाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अपने सर्कल में कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने आपसे एक्सपेक्ट किया, कहीं ना कहीं अंदर नाराजगी हो गई, ब्रेकअप्स, कैसी बातें हमारे माइंड में, बच्चों के जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, बहुत सारा कुछ आता है। हमने फेसबुक स्टेटस पे कुछ लगाया, कहीं कुछ हमने अपडेट किया इंस्टाग्राम पे, मुझे इतने लाइक्स नहीं आए, मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया, मेरा बर्थडे था, मुझे किसी ने विश नहीं किया, या उतने विश नहीं आए। सोचो, हमने ये भी सोच रखा है कि मुझे कितने विशेस आने चाहिए, मान लीजिए कम विशेस आए तो क्या हो गया? परिवार आपके साथ है, आपके नियर डियर जो बहुत आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपको विश किया, हो सका उनमें से कुछ मिलने भी आए। आप क्यों एक छोटी सी विश के लिए, वो फेसबुक की एक विश जो सिर्फ ये लिख दे कि हैप्पी बर्थडे, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हमें हर्ट करती है ना, मैं सच बताऊं, ये कहीं ना कहीं हमें अंदर से कमजोर कर रही है। तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आप अपने ही, मैं आपको सही बताऊं, हम बाहर से फ्रेंड्स की वेट करते हैं कि मुझे कितने फ्रेंड्स मैसेज करेंगे। मैं एक छोटा सच आपको बताती हूँ कि आप कभी भी कहीं पढ़कर सुनकर देखना कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। एक पल सोचिए, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका बेस्ट फ्रेंड है आप खुद। आप खुद सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं हेल्दी रहूं। ये हर एक की चाहत है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं। आप अपने आप से उस तरह नहीं मैं बात कर रही हूँ कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं वो नहीं बात कर रही। आप अपने आप को अच्छे से अच्छा रखें, हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा अच्छा सोचें। क्योंकि सोचिए, आप जिसके बारे में सोच के समय बिता रहे हैं, आपके मन में किसी को लेकर नाराजगी चल रही है, किसी ने आपको मैसेज नहीं किया, किसी ने आपका हालचाल नहीं पूछा, आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, पर सोचिए उस फ्रेंड को और उस रिलेटिव को ये पता ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर आप सोच के समय क्यों खराब कर रहे हैं? इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि एक छोटा सा फार्मूला कि हम एक्सपेक्टेशन को ही जीरो कर दें। हम ये सोचे ही ना कि सामने वाला मेरे लिए बहुत करेगा,
मैं आपको सच बताऊं, हम ये सोचें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ या मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि बेसिकली सोचिए, ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई है, जो कुछ भी बनाया है हमेशा हमेशा उन्होंने देने के लिए बनाया है, लेने के लिए नहीं बनाया। छोटी सी बात सोचते हैं, जितनी भी आप नेचर में चीजें देखते हैं, चाहे पेड़ है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, या हम बात करते हैं सूरज की, सूरज हमें रोशनी देता है, क्या कभी मांगता है? हर चीज हमें देने के लिए बनाई है। पेरेंट्स अपने बच्चों को देते ही देते हैं। जब बच्चों के देने का समय आता है तो फिर वो पीछे क्यों हटते हैं? मैं ये नहीं कह रही सब ऐसा करते हैं, पर आमतौर नॉर्मल बात कर रही हूँ, सोसाइटी में हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ईश्वर ने हमें देने के लिए बनाया है, हम लेना, ठीक है, हम लेना चाहते हैं सामने वाले से, हम कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, अच्छा है, पर कहीं ना कहीं अंदर देने के बहाव हो। सामने वाले नहीं बुलाया, आप बुला लो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा है। बट मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ, एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दीजिए कि किसी ने आपके साथ ऐसा, क्योंकि आप सोच सोच के उसको नहीं बदल सकते। हाँ, ऐसे जरूर बदल सकते हैं जब आप उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, अच्छा सोचेंगे, एक स्माइल पास करेंगे, हंसकर बात करेंगे, हो सकता है तब वो जरूर बदल जाए, पर अंदर से सोच सोच के नाराज होके शायद वो नहीं बदलेगा। अच्छा पूजा, एक और क्वेश्चन है भी, जिदा कि ਸਾਨੂੰ पता कि स्कूल खुल चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, तो ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ? कि स्कूल लगातार खुल पाएंगे या फिर बच्चों को वही दौर देखना पड़ेगा? देखिए, ये तो आने वाला भविष्य है, ये फ्यूचर है, इसके बारे में हम आज तो नहीं कह सकते कि कोई वायरस आएगा या नहीं। हाँ, इस चीज के लिए आमतौर पे छोटे छोटे कमेंट्स, भविष्यवाणियां होने लगती हैं कि ऐसा फिर होगा या ऐसा फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, आमतौर पे लोग कह देते हैं। पर मैं आपको एक चीज आज और बताना चाहूंगी, बीइंग टीचर मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी, और खास एक बुक का मैं नाम भी लेना चाहूंगी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ। मैं वो उस बुक का नाम है जीवन का रहस्य, सीक्रेट ऑफ लाइफ। उस बुक का एक निचोड़ मैं आपको कह देती हूँ, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जिस चीज को डिस्कस करते हैं, बार बार वो चीज हमारे सामने आने लगती है। क्यों ना आज, ना जाने फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये नहीं जानती, पर क्यों ना जितने इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या हम सब मिलकर पॉजिटिव वाइब्रेशन उस यूनिवर्स को, ऊपर की तरफ, हम परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ अपनी ये वाइब्रेशन दें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब जब स्कूल खुलेंगे, हमेशा खुले रहेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे स्कूल में, स्कूल से खुशी खुशी आएंगे, और हम सबके परिवार, हम सबके बच्चे हेल्दी रहेंगे। क्यों ना हम इन वाइब्रेशंस को पैदा करें। हाँ, जब वो वक्त ऐसा कुछ अगर किसी ने बोला, तो हो सकता है सरकार उसके लिए बहुत इंतजाम कर रही है। देखिए, इंजेक्शंस बनाए गए, पहले 60+, फिर 40-20 करते करते आज बच्चों के इंजेक्शंस भी आ चुके हैं, सबको इंजेक्शन लग गए। इसका मतलब एक सेफ्टी वाला प्रिकॉशन हम सबने ले लिया, बच्चे स्कूल जा सकते हैं। एज वेल एज अगर सभी परिवार अपना थोड़ा थोड़ा समय वर्कआउट के लिए रखें, एक्सरसाइज के लिए रखें, अच्छा हेल्दी खाएं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, और सच बताऊं, अच्छा खाने पीने से ज्यादा जरूरी है अच्छा सोचना। तो ये बहुत जरूरी है, हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपने वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाएं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, स्कूल खुलेंगे, हम सभी हेल्दी खुशी खुशी इसी तरीके से लाइफ स्पेंड करेंगे, ताकि हम और लोगों को, जितने भी हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, मान लीजिए मुझे कोई मेरी फ्रेंड मिली, मैंने अगर उसे बोल दिया, तूने मान लो उससे बात करते मैंने बोल दिया कि ये फिर से ऐसी होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, हो सकता है वो ऐसा ना सोच रही हो और वो मेरे से ये थॉट ले गई और उसने वही बात घर जाके कह दी। जैसे उसने घर में कहा, वो छोटे छोटे बच्चे मासूम जो स्कूल जाने को तैयार है, वो एकदम से ये सुनकर कहीं फिर दिल टूट जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो बच्चों की वो पोजीशन हो रही है कि हमें इस घर की 4 दीवारी से स्कूल जाना है। वो बच्चे जो कभी छुट्टी मांगा करते थे, छुट्टी हो जाए, 2 दिन की हो जाए, 4 दिन की हो जाए, अब 2 साल से छुट्टियां, आज वो कहते हैं हम हर दिन स्कूल जाएंगे, स्कूल खोल दो। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक से एक जुड़ा हुआ है। यही हम इसकी बजाय, अगर मैं उस फ्रेंड को कहूँ या जो मुझे हमें कोई मिलता है, हम उसे ये कहें कि अब सब ठीक होगा, देखना हो जो मर्जी, अच्छा ही होगा, अच्छा सोचे तो अच्छा होगा, ईश्वर हमारे साथ है, ये कोई वक्त आया था, ये वक्त गुजर गया, अब अच्छा समय आ रहा है, अच्छा ही रहेगा, हर तरफ सब कुछ ठीक रहेगा। जब हम इस तरह की वाइब्रेशन सामने वाले को देंगे, उसे अच्छा लगेगा, वो अपने घर जाएगा, वो भी यही बात बोलेगा कि भाई अब सब ठीक है जी, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। तो ऐसा करते करते वो परिवार को हमने एक छोटी सी खुशी बांट दी।
तो ऐसे हम छोटे छोटे डीड्स करके, छोटे छोटे एक्ट करके हम बहुत सारी खुशियां बांट सकते हैं। ਪੂਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਜਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਬ।